Today is our topic, especially depending upon from the last lecture. In the last lecture, we have discussed about the law of mass action, constant pressure, how to represent the equilibrium constant of a backward reaction and forward reaction. If you all of you are having our chemical equilibrium notes, then you can come in page number 5. First of all, I am taking a reactant A plus B. It is a chemical reaction CC plus BB. Now we are finding the rate of reactions. Remember, dear student, if we have to find the rate of reactant or rate of product. So first of all, let me tell you the rate of reactant. Rate is denoted by R. So if we are finding the rate of reactant, it is directly proportional to the concentration of the reactants. A to the power A and B to the power B. Similarly, if I found the rate of product, it is directly proportional to the concentration of product, C to the power C and D to the power D, right? These are the rate of reaction. What is rate of reaction? What do you know by rate of reaction? Yes, rate of reaction means how the concentration terms increases or decreases, how the reactant convert into the product. So overall, if you want to calculate the rate constant of an equilibrium reaction, then what we have to do, we have to write the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, right? Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Now you have to remember that what is forward reaction and what is backward reaction. This is your forward reaction, this, and this is your backward reactions. As all of us know, when we remove proportional, we have to put constant. So here we can write R is equal to K A to the power A and B to the power B. Similarly, here also we can write, this is which type of reaction, backward or forward? Forward. And this is backward, K C to the power C and B to the power D. C to the power C and D to the power D. So forward and backward means reactant to product and product to reactant. When the reactant changes to product, that's called forward reaction. And when product changes to reactant, that's called backward reaction. So here, if I take both the values, if I want to calculate the forward reaction constant, I can put here Kf and I can put here Kb, right? And I have informed you right now that the forward rate of reactions and backward rate of reaction both are equal. So can I write here Kf into A to the power A and B to the power B is equal to Kb C to the power C and D to the power D. Can I write this? Yes or no? Yes. So if I talk about Kf upon Kb, what will be the value? C to the power C and D to the power D upon A to the power A and B to the power B. Yes? And here Kf upon Kb is equal to Kc. Kf upon Kb is equal to Kc. So Kc means equilibrium constant in terms of molar concentration. That is the concentration of product upon concentration of reactant. All of you have got it, that from where this Kc had come from?
In the earlier lecture, we have discussed about how to calculate these things, but we have not known about what is Kc, what is Kp. Now let me tell you, I just want to take one reaction and I want to calculate the value of concentration constant. I have taken one reaction that PCl5, which is in the gaseous state. As I have heated it, so it becomes PCl3 plus Cl2. They both are also in the gaseous state. Can you tell me that at the initial time, when time is 0, what will be the concentration of product? Any of you? जब समय 0 है, रिएक्टेंट ही है अभी, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0. याद रखना, जब 100% हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने इसका रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन अभी मैंने शुरुआत ही किया है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो अभी जो है हमारा रिएक्टेंट ए है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई, तुरंत तो प्रोडक्ट नहीं बनता है ना, क्या बन जाता है? तो जब प्रोडक्ट एक ऐसी परिस्थिति में आएगी जब वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है, जस्ट सपोज कीजिए अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरा प्रोडक्ट जो है एक्स बन गया, ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? आप बता सकते हो रिएक्टेंट क्या होगा? अगर मेरा प्रोडक्ट एक्स बन गया है तो रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट ए माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स हो जाएगा, और जितना प्रोडक्ट बनेगा भाई साहब उतना ही रिएक्टेंट में से घटेगा ना, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट, 100% प्रोडक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, एक ऐसा स्टेट जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई पूछे कि भाई साहब कंसंट्रेशन के टर्म्स में थोड़ा हमें बताइए कि क्या होगा कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अब आप लोग पूछोगे सर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो आप दे रहे हो इसका एक्टिव मास होगा, वॉल्यूम्स में होंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉल्यूम। तो मैंने आप लोगों को मोलैरिटी वाला टर्म समझाया था, व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं यहां पर a माइनस एक्स किस में से गया है, तो उस समय भी हमारे पास टोटल वॉल्यूम था, अभी भी हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, वहां पे भी हमारा टोटल वॉल्यूम होगा और यहाँ पर भी हमारा टोटल वॉल्यूम। कहने का मतलब भले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रहेगा तो वॉल्यूम नहीं ना बच्चों, कि नहीं रहेगा? भले हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया लेकिन रहेगा कुछ ना कुछ मास या कुछ ना कुछ वॉल्यूम में रहेगा, राइट? तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो x बाई वी, h बाई। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट Kc is equal to concentration of product upon concentration of reactant। पीछे वाला स्लाइड, ये वाला देख लीजिए, लिख लीजिए। Done?
Done? और भी है कोई? तुम्हारा भी कोई भी लिख सकते हो। नहीं हो रहा है। लिंक है, लिंक है। 11 और 12 की सेम ही है। कल वाला था वही वाला। चलिए आते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने आपको कहा, अब हम लोगों को एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। यहां पर Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PCl3 एंड Cl2 अपॉन PCl5, राइट। ये हो गया हमारा Kc का वैल्यू। अब आ जाइए, जो वॉल्यूम हम लोगों के पास मिला है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अब रिएक्टेंट का क्या वॉल्यूम है और प्रोडक्ट का क्या वॉल्यूम है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे रिएक्टेंट की वैल्यू है A माइनस एक्स बाई वी, प्रोडक्ट का x बाई वी और x बाई वी, तो हम लोगों को ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ PCl3 x बाई वी अपॉन A माइनस एक्स बाई वी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स बाई वी, which is also written as x square by v square into v upon a minus x। v से v square का एक कैंसिल, x square upon v into a minus x। होगा या नहीं होगा? So this is the reaction constant in the terms of, अगर हम इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो यहां पर ये हमारा रिएक्शन कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, याद रखना ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कर रहे हैं तो यहां पर हमें A की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। तो Kc की वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन v इंटू 1 माइनस। गॉट इट? A का मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो 1 मोलैरिटी, बराबर, इसीलिए मैंने वहां पे 1 ले लिया। तो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट। अब आ जाइए, मैंने इससे पहले आपको Kp के बारे में भी सुनाया था, याद होगा आप लोगों को। व्हाट इज Kp? कैन एनीबॉडी से मी? Equilibrium constant in terms of pressure. This is in the terms of concentration. Got it? आप लोगों ने लिख लिया इसको? सब लोग का हो गया? इसके पीछे वाला बाकी है, लिख लीजिए इसके पीछे वाला।
डन। आप किसी कुछ लिखते भी हो या फिर तुरंत बोला तो फिर आपको है नहीं सकते कितना फास्ट लिखता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये वाला भी हो गया, जल्दी से लिख लीजिए इसको फटाफट। अब आपको एक चीज मुझे बताइए, मैंने लास्ट में कहा था किस चीज का केपी निकलेगा? पक्का? लिक्विड का कंसंट्रेशन निकलता है इस तरह और गैस का प्रेशर बताया था ना। तो आप पूछ सकते थे सर अभी तो आपने लिखा इसमें दोनों के दोनों गैस है, तो फिर आपने केसी कैसे निकाल दिया, है ना? आप पूछ सकते हो। तो मैंने आपको बताया था केसी और केसी का रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, दोनों का केसी और केपी निकाल लेते हैं, दोनों का रिलेशन कर देंगे, तो हम लोग को केपी और केसी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, लिख लिया आप लोगों ने? थोड़े हस्त को जल्दी जल्दी हंसाते हुए लिखिए। हस्त मतलब हाथ, संस्कृत वर्ड हस्त। वीणा पुस्तक आदि। आप लोगों ने संस्कृत में कुछ श्लोक पढ़े होंगे, नहीं? सरस्वती जी का श्लोक लिखा। चलिए बहुत अच्छा, इतना भी पढ़ा बहुत काफी। आगे बढ़े बेटा हम लोग। डन अध्यारोप। चल अब हम लोग पढ़ते हैं केपी की तरफ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दैट इज केपी। तो केपी से डिनोट करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर केपी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अपॉन। मोल फ्रैक्शन को अगर हमें डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? Na अपॉन Na प्लस Nb बोल सकते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर लिख सकते हैं हम लोग। यही था ना? अगर स्टेट्स ऑफ मैटर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार डाल्टन पार्शियल प्रेशर के लॉ को पढ़ लीजिए। यहां पे मैंने लिखा था PA इज इक्वल टू XA इंटू P टोटल। अगर याद होगा तो, नहीं याद है तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 डाल्टन पार्शियल प्रेशर वाला टॉपिक एक बार पलटी मार के देख लेंगे। अब आ जाइए, सेम चीज आपको निकालना है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था PCl5 का, ये भी गैसियस, इक्विलिब्रियम PCl3 गैसियस एंड Cl2 गैसियस। ये आपका स्टार्टिंग में A है, ये 0 0, ये X, ये X, ये A माइनस X। ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। बराबर? फाइनल वैसे होता नहीं है, इक्विलिब्रियम होना है तो फाइनल तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं पार्शियल लिख लीजिए। अब मुझे इसमें से पहले आप लोगों को बताना है कितने मोल्स, और मैंने आपको लास्ट रिएक्शन में बताया था अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है तो A के बदले हम लोग क्या ले लेंगे? 1 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस x। बराबर? तो अब आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना, तो कैसे निकालोगे? बताइए कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बंधुओं? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग। बराबर? उसके बाद PCl3 का निकालेंगे, फिर PCl2 का निकालेंगे, एक एक करके निकाल लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ
PCl3 या PCl5 कितना होगा बताइए? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का कितना होगा? PCl5 का जो नंबर ऑफ मोल्स है 1 माइनस एक्स है ना, टोटल भी इतना ही है, और टोटल प्रेशर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू पी, तो 1 माइनस एक्स कर ही आएगा। ये हो गया आपका टोटल प्रेशर। हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? हाँ बोलिए बेटा। 1 टोटल आपका 1 प्लस एक्स ही आएगा, मैंने 1 माइनस एक्स लिखा। यहां पर आपको क्या होगा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। 1 प्लस एक्स क्या हुआ और 1 माइनस एक्स क्या हुआ, इस चीज को समझने की कोशिश करें। 1 माइनस एक्स का मतलब होता है जब आप खास करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट करते हो तो आपका 1 माइनस एक्स आता है, और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो सिंस हम लोग यहाँ पर x हमारा रिएक्टेंट के साइड गया है और 1 हमारा सॉरी x प्रोडक्ट के साइड गया और 1 था 1 माइनस एक्स हो गया, मतलब टोटल जो है 1 प्लस एक्स मोल हुआ। यही हुआ ना, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और रिएक्टेंट का 1 माइनस एक्स हुआ तब तो जाकर के वो x हुआ ना, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इसको हमने प्रेशर से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से हम लोग बारी बारी करके Cl2 का भी निकालेंगे और PCl3 का भी निकालेंगे। तो PCl3 का क्या होगा और PCl5 का क्या होगा? देखो टोटल आपका इतना हो गया बराबर, और इधर आपका ये इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका नंबर ऑफ बराबर। तो अगर हम PCl3 का निकाल रहे हैं, PCl3 का क्या हो जाएगा बच्चों? x अपॉन 1 प्लस एक्स, और अगर Cl2 का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। होगा या नहीं होगा? तो तीनों का पार्शियल प्रेशर हम लोगों को मिल गया। पार्शियल प्रेशर मिला या नहीं मिला? मिल गया। अब आपको निकालना है भाई साहब टोटल प्रेशर। देखिए अभी आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसी तरह से अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, प्रेशर कांस्टेंट की बात करें, तो टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट मतलब PCl5 अपॉन PCl3 प्लस नहीं डालना था, कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोगों को क्या डालना है? कंसंट्रेशन डालना है। तो ये कंसंट्रेशन और Cl2 का, लेकिन ये सारी चीजें किसमें होगी? प्रेशर में। P राइट रिकॉर्डिंग स्टॉप थैंक यू। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि अगर यहां पर हम प्रेशर कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट? Pc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या Kp लिख दें इंस्टेड ऑफ Pc, प्रेशर कांस्टेंट बराबर। तो प्रोडक्ट में क्या सब था हमारे पास? प्रेशर ऑफ PCl3 एंड प्रेशर ऑफ Cl2 बराबर, और रिएक्टेंट में क्या था हमारा? PCl। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है रिएक्शन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट निकाल रहे हैं। अब आप लोग इस चीज को यूनिट वाइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि PCl3 का जो वैल्यू है वो कितना है, PCl2 का वैल्यू कितना है। अगर आप इसको निकालोगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, यही है ना? अभी जस्ट निकाला है ना हमने कंसंट्रेशन, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसके यूनिट की तरफ जाएंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि लिक्विड का कंसंट्रेशन होता है और गैस का क्या होता है? प्रेशर होगा। तो गैस का जब प्रेशर होगा तो प्रेशर किस चीज में मापा जाता है? एटीएम। तो एटीएम मतलब ऑटो टेलर मशीन नहीं बेटा, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एटीएम।
तो यहाँ पर जब आप एटीएम में निकालोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर ऑफ गैसियस एटम निकालना पड़ेगा। भाई साहब गैसियस एटम कैसे निकालेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के गैसेस कोएफिशिएंट माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के गैसेस कोएफिशिएंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है, दो है और रिएक्टेंट एक है TCl5 और प्रोडक्ट TCl3 और Cl2। दोनों के आगे में क्या है? 1 और 1 है। तो 1 + 1 कितना होगा? नर्सरी का बच्चा रहता है। 2 - 1 कितना होगा? क्यों किया 2 - 1? प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर चलिए हम लोग इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं बकबक करना है, बस इस चीज को ध्यान रखना। अब आ जाइए आप लोग यूनिट्स के बारे में, कैसे हम इसके यूनिट्स को, ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रेशर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा 2x के बदले क्या लिखते हैं बताइए मिस्टर शर्मा? शर्मा ही है ना जी? शर्मा जी बताइए। 2x अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के कोएफिशिएंट के साथ 2x आए तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? x टू द पावर 2 लिखेंगे, याद रखना x टू द पावर 2 लिखेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है और यही 2 वाला जो है नंबर ऑफ मोल्स में भी काउंट होगा, है ना? वही तो नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन। यही चीज याद रखना, 2/2 + 1, 3/2 + 1, ये सारा मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट करके। तो अब आ जाइए रिलेशनशिप बिटवीन, बाकी है बेटा? बाकी है, लिखना बाकी है? क्या बात कर रही हो, इतने देर से नहीं लिख रही थी बहरा? इससे पहले वाला बाकी? ओह माय गॉड, तब तो आप बहुत होशियार है बेटा। ये होशियार मुझे पता नहीं था। आप लोग एक रिएक्शन लिखिए, अमोनिया बनाना बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाए, N2 + H2 = NH3। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, इक्विलिब्रियम कीजिए और इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट निकालिए। ये भी हो गया। मुद्रा जी का बाकी है। इसके बाद पहले तो यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके बाद हम लोग डालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन। मैंने इन लोगों को बोला था आप लोगों को Kc और Kc की वैल्यू निकालना है। N2 + H2 = NH3। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए अपने हिसाब से और उसके बाद डन हो गया। चलिए जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छा बेटा, मैं बना देता हूँ क्योंकि आप लोगों से उम्मीद ज्यादा नहीं करूँ, वही अच्छा है मेरे लिए, है ना? पार्क कर दिया यहाँ से, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों से उम्मीद तो करना ही मत, हम लोग इतने निकम्मे निठल्ले हैं कि कुछ नहीं कर सकते, है ना पार्क जी? कर लिया? कितना आया केसी की वैल्यू? केपी निकाला नहीं मतलब तुम अपने नोटबुक में नोट्स में से देख के बोल दिया। अच्छा बता केपी क्या है?
आता माची सटके मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मराठी में। नेक्स्ट बेटा तू वहीं से बता। कोरोना का सीजन चल रहा बेटा, वहीं बैठ ना बना देता बेटा, तू बैठ जा बेटा, मैं बना देता हूँ। चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद मैं वो क्वेश्चन भी बना देता हूँ। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने देखा कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही थी वो कंसंट्रेशन में आ रही थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जितना भी कोएफिशिएंट टर्म था वो ऊपर में रेशियो हो रहा था। तो इसको हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन। अब बोलोगे सर व्हाट इज दिस डेल्टा एन? तो डेल्टा एन बच्चा कोएफिशिएंट वाला टर्म है। और अगर हम केपी की बात करें तो केपी का यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक बार प्रेशर, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन, बराबर। अब बोलोगे सर व्हाट इज डेल्टा एन? तो डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब यहां पर जैसे मैंने इनको पूछा था N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, और मैंने कहा आप लोग खुद से बैलेंस कर लीजिए। तो आप सब इतने महान हैं कि कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है ना। यही हमारे पार्थिवी ने भी किया होगा, राइट। इसके बाद खाली नहीं किया होगा, मुझे विश्वास है। ये जो है बेटा ये 1 ये नंबर ऑफ मोल्स, ये 3 भी इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये 2 इसका नंबर ऑफ मोल्स। तुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? केपी कैसे निकलता है? जस्ट मैंने बताया। याद रखना एक चीज हमेशा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट या प्रेशर कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, वो नंबर होगा। कंसंट्रेशन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन प्रेशर, क्योंकि जब तुम दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो इसका यूनिट नहीं होगा, यहाँ पर जो हम लोग की वैल्यू होगी उसका यूनिट होगा। बात समझ में आया? नहीं